Dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 9th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. We have to continue with the same, and we are having more to understand about parallelograms, trapezium, and such quadrilaterals. I would like to remind you that we already studied about adjacent angles of a parallelogram are supplementary, that is total is equal to 180, because adjacent angles are just like interior angles of parallel lines which are intersect by transversal. Second point, you studied opposite sides of a parallelogram are congruent, opposite angles of a parallelogram are congruent, diagonals of a parallelogram bisect each other. These all can be universally used for testing a parallelogram, whether the given quadrilateral is a parallelogram or not. The theorem, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. So theorem. This theorem can be proved very simply. Diagonals, here in this case ABCD, and we are having diagonals bisect each other, that is given. Bisect बोलेगे तो equally divide. That is why these symbols are showing they are equal and they are intersecting at point E, and it means it is having a sense that the length AE is equal to length CE. The same way length DE is equal to length B. That is the meaning of a diagonal bisect. Diagonals are not equal, diagonals bisect. Diagonals are टुकड़ा हुआ है. Now, we have to prove with the help of that information, the information that the diagonals of a parallelogram अगर bisect हुआ है, diagonal of a quadrilateral bisect हुआ है, तो that quadrilateral will be a parallelogram. ये हमको प्रूव कर सकते हैं. चलो कैसे प्रूव करेंगे? ये डायग्राम देखे तो हमको मालूम है. अभी जो पैरेललोग्राम दिया नहीं है, what is given is diagonals bisect each other. अगर diagonal bisect each other हुआ है, so this is equal to this is equal to this, and we can say that this angle is equal to this angle because vertically opposite angle. And we can easily prove by simply SAS test से we can prove AEB is congruent to DEC. जब एक बार congruent हो गया, these alternate angles are congruent, these alternate angles are congruent, these alternate angles are congruent, these alternate angles are congruent. और क्या चाहिए? These two are parallel, these two are parallel. हम parallelogram prove करेंगे. That means with the help of alternate angle congruency, with the help of the transversal property of parallel lines, okay, it will allow us to prove that these two triangles are congruent, and we will prove that AD is parallel to BC. The same way we will prove that AB is parallel to DC, and we'll prove that ABCD is a parallel. Understood? So that things are becoming easy now once if you are familiar with what the properties of parallelogram and properties of parallel line and transversal, properties of triangle, जो भी आपने पहले पढ़ा है, ज्योमेट्री और मैथ सब ऐसा ही, पहले के बिना आगे नहीं चल सकता, सिर्फ पहले का वीडियो भी देखना जरूरी है. Okay, let us go ahead. Quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is parallel and congruent. A pair, देखो एक आइडिया आपको बताने के लिए समझना. टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है आपका, ये तो बोलना ही बोलना है क्योंकि इतना अच्छा एग्जांपल्स उठा के दे रहे. ए पेयर ऑफ, ये देखो ए पेयर ऑफ, ये को इम्पोर्टेंस, एक ही पेयर के बारे में बात की. लास्ट क्या था? डायगोनल्स बाइसेक्ट. अभी क्या दिया? ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर. ए पेयर के ऊपर दो प्रॉपर्टी, पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, तो क्वाड्रेटिक पैरेललोग्राम. ये भी हमको मालूम है. कैसे प्रूव करेंगे? हमको जो दिया है उससे प्रूव करना है. क्या दिया है? ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, द सेम पेयर इज पैरेलल. प्रूव करना है ABCD से पैरेललोग्राम. हम क्या कर रहे हैं? एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं.
कौन सा पेयर ऑपोजिट पेयर दिया है? CB इज कॉन्ग्रुएंट टू DA, CB इज पैरेलल। इतना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमने बनाया और हमको क्या मिल गया? If these two are parallel, we know that these two angles are congruent, alternate angles, and this is equal to this already दे चुका है, this is parallel to this देने से ये alternate angle हो गया। हमने जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ डायगोनल कॉमन है, किसका कॉमन है? If you consider CBD one triangle, other triangle ADB, ये दोनों का कॉमन साइड है, अपना कॉमन साइड कौन सा है? कॉमन साइड इज BD, the diagonal drawn. The diagonal drawn. So by SAS test किधर से आया? SAS, ये S के बराबर, ये S, ये एंगल के बराबर, ये एंगल, ये कॉमन साइड। SAS टेस्ट से हम प्रूव किया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल CDB, what is CDB? This angle. And angle ABD, what is this angle? They are also congruent angle, congruent triangle. अगर ये दोनों है तो alternate angle टेस्ट से और parallel line से वो भी congruent हो गया। क्या प्रॉब्लम है? We can straight away say that what we can say ABCD is a parallelogram because opposite sides are parallel in this case. One तो उन्होंने दिया, दूसरा तो हमने प्रूव किया। That's all. Okay. So my dear student, things are getting easy if you are following seriously and interestedly. Interest वैसा चीज है कि कुछ पूछने के बाद कैसा करेगा समझ में नहीं आता है, थोड़ा दिमाग लगाने के बाद कैसे करने का समझ में नहीं आता है, थोड़ा पेन पेंसिल चलाने के बाद आंसर मिल जाता है। That is what is the spirit of learning. चलो, quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite angles are congruent. Quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite sides are congruent. And पहले क्या था? Opposite angles. So ये same क्या बता रहे हैं? Same either opposite angles are congruent, your opposite sides are congruent. Okay, then we will go ahead. These all properties are repeated. Quadrilateral is a parallelogram if diagonals bisect each other. Quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are parallel and congruent. These all theorems are very important, very clear, nothing but properties of parallelogram. चलो, बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए, समझा के आपको एक्सरसाइज करने लायक बनाना है और आपको स्लो भी जाना है। PQRS is a parallelogram. M is the midpoint. एक पॉइंट लेके आ रहे हैं of side PQ. This is midpoint of side PQ and N is the midpoint of side RS. Prove that PMNS and MQRN are parallel. ये पहले दिया है PQRS पैरेललोग्राम, अंदर एक लाइन खींचेगा मिड पॉइंट से और बोल रही है ये दोनों छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है, वो प्रूव करना है। तो किसी भी चीज पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको मालूम है? ऑपोजिट साइड्स, ए पेयर लेगा तो कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, चार साइड लेगा तो ऑल ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, ऑल ऑपोजिट साइड। ए पेयर है तो उसका दो प्रॉपर्टी, चारों साइड लेगा तो वन प्रॉपर्टी। एनीवे क्या क्या प्रूव कर सकते हैं देखेंगे। पहले PQRS पैरेललोग्राम देने से मैं अपनी तरह से आपको बता रहा हूँ, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, this is congruent to this whole side is congruent to this, M and N midpoint देने की वजह से this part is congruent to this part is congruent to this. Correct? आपको अगर कुछ भी अगर जरूरत पड़े तो MN के बारे में, MN के एक प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, जैसे कि PM SN सब पैरेलल है, PQ RS भी पैरेलल है और ये जो हाफ लेंथ है ये भी मालूम। सो वी विल गेट दैट। MN मिड पॉइंट देने के वजह से हमको ये प्रूव करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाफ ऑफ दैट साइड इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। चलो हम थोड़ा जरा क्लीनिंग करके आगे बढ़ो। व्हाट इज इट? चलो व्हाट इज द मेथड? PQ इज पैरेलल टू SR, no doubt.
PM and parallels, PM in SN are also parallel. मतलब ये छोटा भी parallel है फिर. Then PQ is congruent to SR. ये तो हमको मालूम दिया है. Then half of PQ, that is PM, is also equal to SN. So अगर हम PM के बारे में बोलेगा, PM is congruent to SN प्रूव करने हुआ. PM is parallel to SN भी प्रूव किया. So A pair का दो प्रॉपर्टी प्रूव किया, तो we can write that PMNS, या जैसे उन्होंने बोला P क्या प्रूव करना, PMNS इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेगा. सेम वे MQRN भी प्रूव करेगा. नो प्रॉब्लम. टेक वन पेयर एंड प्रूव टू प्रॉपर्टीज. चलो आगे बढ़ेंगे. Textbook example, if you want, you can do that again and again and again and thorough with it and go ahead. Things are becoming easy because you are hearing from me from last 2 videos. Here is something what is given for you to do. You to do means you will fill in the blanks. Practice for how to write. Point D and E are midpoints of side AB and side AC of triangle ABC. So, triangle लिखा है. This is a triangle. उसका midpoint, side का midpoint है D and E. ना मुझे समझ में आया. Point F is on ray ED such that ED is equal to F. Marking किया है. ED is equal to FT. बनाया. Extension दिया है. Extend किया है इधर से extend किया. Prove that AFB is a parallelogram. Where is AFB? AFBE. हाँ, triangle से एक parallelogram बना है. इसे parallelogram. For this example, write given, prove, ये सब आपको लिखना है. Practice दे रहे ना. What is given? It is given that triangle, कौन सा triangle? ABC. In triangle ABC, ABC है ना ये. It is given that D and E are midpoints of sides. Yeah, that is what is given. That is what is given. D and E are midpoints. उससे अपना शुरू किया और हमको प्रूव करने को बोला. Proof that AFBE, what is it? It's a quadrilateral. Is a parallelogram. ये हमको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? हाँ भाई, सेगमेंट AB एंड सेगमेंट EF. व्हाट इज सेगमेंट AB एंड सेगमेंट EF. व्हाट इज EF. सेगमेंट AB एंड सेगमेंट EF आपको दिख रहा है ना. आर डायगोनल्स. किसका? AFB जो हम पैरेललोग्राम प्रूव करने जा रहे हैं उसको डायगोनल्स है. उधर हमको कुछ क्लू मिला है. ED एक्सटेंड करके DF बनाया और ये D मिड पॉइंट है AB का, मतलब इसलिए ये सब कॉन्ग्रुएंट है. सो व्हाट वी विल डू? D इज कॉन्ग्रुएंट टू DB. AD मैं जरा कलर चेंज करता हूं आपको दिखने के लिए. AD इधर तक और DE आर कॉन्ग्रुएंट क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो इधर लिखेंगे D इज मिड पॉइंट. इसकी वजह से, नहीं तो नहीं. Now ED is also equal to EF. ये डायगोनल को टुकड़ा किया है, तो हम लिखेंगे सेगमेंट ED, ये जो पीस है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DF, क्योंकि हमने वैसा बनाया, कंस्ट्रक्शन है कर दिया है, सच दैट ED is equal to DF. अभी क्या हुआ? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल AFBE बाइसेक्ट ईच अदर. वो हमको प्रूव हो गया. क्यों? ये से ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल. इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, AFB से पैरेललोग्राम by parallelogram test. Which is that test? Test is this: diagonals bisect each other. This is the name of the test. Understood? You have to
ये आपके टेक्स्ट बुक का है, आपको उधर फिलअप कर सकते हैं, नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, बार बार देख के बैठ सकते हैं। जब तक दिमाग के अंदर नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं जाएगा, लेकिन पीछे जरूर जाएगा। टू रीड द टेक्स्ट बुक, टू वॉच द वीडियो, टू रीड इट अगेन, गो थ्रू द एग्जाम्पल, लिख के देखेंगे, मेहनत करके 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 आगे कुछ मेहनत ही नहीं है वैसा बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जो अभी मेहनत करेगा उनको आगे मेहनत ही नहीं करना है, सब समझ में आते फिर क्या मेहनत करेगी, एक बार देखने से समझ में आते हैं। प्रूव दैट एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। अभी रोम्बस याद है क्या आपको? रोम्बस इज सच ए फिगर, ये देखो इधर रोम्बस दिया है, all four sides are congruent, these angles are opposite angles are congruent, ये सब रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो रोम्बस पैरेललोग्राम में प्रूव कर रहे हैं, तो रोम्बस का पैरेललोग्राम का प्रूफ कर सकते हैं क्या? मैं पहले बोला था रोम्बस पैरेललोग्राम को धक्का मारेगा तो रोम्बस बन जाता है, वही धक्का मारा करके लिख नहीं सकते ना, हमको ज्योमेट्री लिखना है। वी विल राइट दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA because it is a rhombus, all sides are equal. When all sides are congruent and all sides are equal, AB, CD, BC, DA. So what will happen here? We can simply say that when opposite sides of a quadrilateral is, and opposite sides test, opposite sides of a quadrilateral is congruent, we can, opposites I mean both set, both pair, both pair, दोनों पैर, एक पैर का तो दो प्रॉपर्टीज है, बोथ पैर है तो वन प्रॉपर्टी, both pair of opposite sides, both pair of opposite sides, आपके लिए ज्यादा लिख रहे हैं, of a quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is a parallelogram, वैसे rhombus is a parallelogram। rhombus तो parallelogram का एक छोटा बच्चा है, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। सिर्फ rhombus नहीं, there are many other figures which you are studying like a rectangle, देखो जैसा बोला वही टॉपिक आ गया, rectangle, मेरा इंक, rectangle, rectangle, rhombus, square, सब पैरेललोग्राम है। हाँ, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी इनको सबको मिला है। सो दैट मीन वी स्टडीड अबाउट रेक्टेंगल, स्क्वायर पहले, लेकिन अभी पैरेललोग्राम अभी आया, लेकिन ये तो 100% श्योर है ये सब। देखो अभी मैं एक पहले कौन सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर अभी मुझे एक रोम्बस ड्रॉ करना है, ये रोम्बस ड्रॉ किया, ठीक है ऐसा रहने दो। अभी मैं एक पैरेललोग्राम जो अभी हमारा फेवरेट है वो भी ड्रॉ किया। देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखता हूँ इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है क्या? इज दिस इक्वल टू दिस? यस। इज दिस इक्वल टू दिस? यस। तो उसमें है इज दिस इक्वल टू दिस? इज दिस इक्वल टू दिस? यस। इज दिस इक्वल टू दिस? इज दिस इक्वल टू दिस? यस। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सब 90 डिग्री ऑपोजिट किया, सब एंगल इक्वल है, ऑपोजिट छोड़, ये भी सब एंगल्स इक्वल है, इसमें ऑपोजिट इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, वो भी सेटिस्फाई हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल तो है ही, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड। इफ यू थिंक अबाउट डायगोनल्स, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इक्वली। चलो उसका जरा एक्सपेरिमेंट वीडियो में टाइम जाएगा, फिर भी आपके लिए कुछ भी। 10.4 दूसरा डायग्राम, 10.4 इधर तक, ओके। अगर आधा मेजरमेंट करेगा तो इट इज 5.2, इसका मेजर करेगा, सॉरी छोड़ के जाना होगा, इसका मेजर करेगा वो भी 5.2, करेक्ट। ऑल दीज आर सच दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में और एक स्पेशल है, ये जो डायगोनल्स है ना, इधर 90 डिग्री है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ रोम्बस। हम बाद में इसके डिटेल में जाएंगे। सो ऑल डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल दीस आर
making rectangle, rhombus and square parallelogram. तो पैरेललोग्राम के अंदर कौन कौन आ गया? पैरेललोग्राम के अंदर ये रेक्टेंगल आया, स्क्वायर आया, रोम्बस आया, पैरेललोग्राम इटसेल्फ आ गया। चलो पैरेललोग्राम को थोड़ा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि तो मदर ऑफ ऑल दिस क्वाड्रिलेटरल बन गया, राइट। चलो आगे जाएंगे, क्या बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक देखिए। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ चाहिए? ये तो एकदम सिंपल है। डायगोनल रेक्टेंगल बनाया तो उसके अंदर एक प्रूफ छुपा के रखा है, दिस इज इक्वल टू दिस। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आपको प्रूव करना है डायगोनल का लेंथ सेम। तो ये किधर है डायगोनल? दिस इज द डायगोनल, राइट। AC and BD are the diagonal। ये कॉन्ग्रुएंटली प्रूव करना है तो आपको दो ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा। आपको AC है ADC जैसे इधर लिया, और DADC हो गया, एंड ट्रायंगल ABC एंड ADC एंड DAB, ठीक है। DAB हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा वो ट्रायंगल के साइड में AD और AC और BD आता है, तो हमको प्रूव कर सकते हैं। ये ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे? DAB एंड ADC आर कॉन्ग्रुएंट, वो SAS टेस्ट है। वो कैसे SAS टेस्ट है? दिस साइड इज इन द ट्रायंगल कॉमन, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, and this angle is 90 degree। for example ADC में this angle is 90 degree, DAB में this angle is 90 degree। so by that SAS test we will prove their congruency and will prove that the side AC is equal to BD। इसी होते जा रहा है। अभी मैं ही करके जा रहा हूँ इसलिए आपको इसी नहीं लगता होगा, तो आप करना शुरू करेगा तो सब इजी हो जाएगा। दैट इज व्हाट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इसका एक्सप्लेनेशन एक सिंपल मेथड में बताता हूँ, आपको याद होगा। व्हेन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ड्रॉन, it's a line, suppose that this is a perpendicular bisector। क्या perpendicular कैंसिल कर, अच्छा नहीं दिखता, perpendicular अच्छा ही बना लेते। here is a line or here is another line, this is perpendicular, and perpendicular bisectors are drawn, and if you put points on this like this, like this, like this, and at the beginning of the lesson it was given that this length will be equal to, sorry छोड़ा नहीं इसको, this length, correct? याद है क्या नहीं? this length is equal to this length, equidistant। तो अपना रोम्बस, ये रोम्बस बेचारा रोम्बस में ऐसा डायग्राम बनाने के बाद ये कंस्ट्रक्ट होता है, देखो इधर का जैसा, और ये इक्वल है तो वो रोम्बस है। तो इधर इक्वल है ना रोम्बस में, और साइड सारे इक्वल, तो इसके अंदर इक्विडिस्टेंट है, ये प्रूव हो रही है। दिस आर FE इज इक्वल टू EH देखा, और GF इज इक्वल टू GH। ये हमको प्रूव कर सकते हैं बिकॉज रोम्बस का साइड्स आर इक्वल। साइड्स इक्वल होने की वजह से ये इक्विडिस्टेंट होने की वजह से हम बोलेंगे इक्विडिस्टेंट है तो साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है तो इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब दिस इज राइट एंगल, जो कि the principle of this। So you will read this part slowly in the textbook or over here, इधर ही पढ़ सकते हैं। क्या बता रहे हैं? Whenever you have perpendicular bisectors, perpendicular bisector का peculiarity है every point on the perpendicular bisector is equidistant from the side। जब आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है ना, तभी भी यही प्रिंसिपल यूज करें। This chapter is having a lot of information related to quadrilaterals.
मैं अगर वीडियो का लेंथ बढ़ा दिया, आपको कभी भी पॉज करके सोच के समझ के आगे जा सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। इसका प्रिंसिपल ये लेसन का स्टार्टिंग में दिया हुआ इक्विडिस्टेंट, आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज किया, उधर भी यही प्रिंसिपल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन आवर ज्योमेट्री। चलो थोड़ा आगे जाएंगे। You can pause the video now, have a glass of water, you can chat with your parents or whoever is there at home and continue, because it is almost 25 minutes हो गया वीडियो, but I am continuing because यही वीडियो में मुझे वो थोड़ा कुछ एंड पॉइंट तक लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? मैं वापस वीडियो बनाने मतलब नहीं ना। व्हाट we understood diagonal of a rectangle are congruent, diagonal of a square are congruent, diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other, diagonal of a rhombus bisect the pair of opposite angles, diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other, diagonals of a square bisect opposite angle। ये सब प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ करके भी, बिन देख के भी, समझ के भी आपको समझ में आए। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत कंपल्सरी। There is another quadrilateral which we have to be familiar with। अभी पैरेललोग्राम से हटके हम दूसरे क्वाड्रिलेटरल में आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रपीजियम। क्या है? ट्रपीजियम। कभी हम एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रपीजियम बोलेंगे। Only one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel। ऐसा भी होता है क्या? होता है। वन साइड देखता हूँ, हमारे पास रेडीमेड डायग्राम है क्या ट्रपीजियम का? हाँ है। मैं भी बच गया, आप भी बच गए। देखो ये है ट्रपीजियम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है, इसका लेंथ इक्वल हो सकता है लेकिन पैरेलल नहीं। पैरेलल का मतलब रेलवे ट्रैक जैसा। नॉन पैरेलल साइड्स, these are non-parallel sides, these are non-parallel sides। Non-parallel sides with trapezium are congruent, that quadrilateral is called isosceles trapezium। The segment joining the midpoints of non-parallel sides of trapezium is called median of trapezium। इधर एक midpoint ढूंढ के निकालने का, length का half। And if I join this, if I join those two midpoints, join, so at that time we can call this line as median of trapezium। Median of trapezium। तो trapezium में peculiarity क्या है? One pair of opposite sides of a quadrilateral parallel। ये याद रखना और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। हम पैरेललोग्राम के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं चैप्टर में। बीच में एक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल आया जिसका नाम है ट्रपीजियम। वी आर मूविंग अहेड। ट्रपीजियम का another property, any quadrilateral if you consider the property that all four angles का sum है ना हमेशा 360 रहेगा। Here is a trapezium or a quadrilateral ABCD having ratio 4:5:7:8। The side का ratios दिया है। ये 4 angles का ratio दिया है 4:5:7:8। सब एंगल अलग है। Let the measure of angle ABCD total तो हमेशा 360 रहेगा। ये रेशियो दिया तो हम क्या लिख सकते हैं? 4x + 5x + 7x + 8x is equal to 360। तो x मिल जाएगा, x is equal to 360 upon 5 + 4 9 + 7 24। x is equal to 15 इधर मिल गया। तो 4x is 60, angle B is 75, angle C is 105, angle is 120 degree। तो B plus C किया हमने, देखो B plus C किया 180 मिला। और ये दोनों को 180 है तो फिर ये दोनों भी टोटल किए तो 180 मिलेगा। कभी 180 मिलते हैं जब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल 180 मिलते हैं, तो मतलब ये दोनों पैरेलल होना होते हैं। मतलब these two are parallel, one pair of opposite sides are parallel।
डिक्लेयर किया एबीसीडी से ट्रेपेजियम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको समझ में आया? एबीसीडी दिया क्वाड्रिलेटरल, बोल रहे एबीसीडी ट्रेपेजियम में प्रूव करो। क्या दिया है? एंगल्स का रेशियो दिया है। एंगल्स का रेशियो दिया तो हमने क्या किया? रेशियो से हम एंगल सच्ची का मेजरमेंट फाइंड आउट किया और ये दोनों को ऐड किया, इंटीरियर एंगल जैसा दिखता है ना, और मिल गया 180, डिक्लेयर किया ट्रेपेजियम। चलो, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, लेकिन फास्ट बताया ऐसा मुझे लग रहा है, तो आपको स्टॉप करके समझ के ले सकते हैं, पॉज करके देख के जा सकते हैं। अभी तो ब्लैंक है, मतलब मैंने कलर निकाल दिया, मैंने जो लिखा है ये 4x 5x 7x 8x अपना रेशियो है एंगल्स का रेशियो से एंगल का मेजर निकाला, टोटल किया, इंटीरियर एंगल का मिल गया। देखो इधर, हियर आई विल राइट, मैं टेक्स्ट बुक बना दे रहेगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखेगी, इंटीरियर एंगल्स, तो हम बोल सकते हैं दे आर पैरेलल, ये दोनों का टोटल 180। लेकिन ऐसा ऐड किया तो 180 नहीं है, दिस एंगल एंड दिस एंगल ऐड किए तो 135 मिल गया। बी एंड ए, दिस एंगल एंड दिस एंगल 135 मिला, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। Only DCAB are parallel. That means one side is parallel. One pair of opposite side. One pair of opposite side parallel होने की वजह से this given quadrilateral ABCD is a trapezium. ये हमारा रीजन है। चलो, मैं इसे बोलते रहेंगे, जो बोला वो चीज बार बार बोलेंगे, नो नीड ऑफ। One time told, you can repeatedly, you can listen to it and you can go ahead. देखता हूँ और कुछ है क्या आपका टेक्स्ट बुक में? ये क्या है? This is about PQRS, side PS is parallel to side QR. Good. मुझे पैरेलल सुने तो तुरंत मार्क करना है, तो मैं खुद भूल जाता। These two are parallel. And QR is greater side PS, QR is greater, वो दिखता भी है, बड़ा है। Prove that PQR S, नहीं, prove that angle PQR on this angle is congruent to SRQ। ओ, इसको congruent प्रूव करना, इतना ही काम है, लेकिन बड़ा काम है। क्यों? PS is congruent parallel to QR दिया है, PQ is congruent to SR दिया है, ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देखिए, हमको बोल रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। हाँ, इसी नहीं है, तो इसलिए इधर एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ा है, क्योंकि अपने पास और कुछ क्लू नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन किया, so that here is a construction, ST is the construction, PQ RS पहले का, ST is the construction, और इधर T में वो इंटरसेक्ट है। And we will talk about PQRS now. PS is parallel to ST given, PQ is parallel to ST construction, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया पैरेलल। That means PQTS is a parallelogram, opposite sides are parallel. That means PQT angle and STR, these are congruent. One this, two this, congruent. Parallel है, corresponding angles है। कैसे? ये दोनों parallel है और ये connected है, transverse, so these are corresponding angles. And PQ is congruent to ST, वो तो पहले ही मालूम, given, and its opposite sides of parallelogram. PQ is congruent to SR also, वो तो given है। ST is equal to SR, वो कैसे? ST is equal to SR because PQ is equal to ST, PQ is equal to SR, तो ST is equal to SR, जितना हमने लिखा उससे। That means when we look here,
in the triangle STR, this angle and this angle are congruent because we proved that this is equal to this side is equal to this side. अगर sides equal है तो opposite angle भी equal है, because isosceles triangle theorem क्या बोलता है, if these two sides are congruent, the angles also will be congruent. So this angle will be equal to this angle. That means PQT, PTR, PRT, all these angles are congruent. Yeah, SRT, PQT, STR, SRT, all these angles are congruent. That means PQR and SRQ are congruent. तो अपना ओरिजिनल ट्रपेजियम में दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना था हमको। हमने पहले ये कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद ये PQTS पैरेललोग्राम में प्रूव किया। दैट मींस साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल्स इधर करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो गया, and this side is congruent to this side already given. That means this angle must be equal to this because these two sides are congruent. That means this angle is congruent to this angle, and we proved what is asked to prove. Understood? तो ज्योमेट्री ऐसा चलता रहता है, जो दिया है उसके अंदर जो हमने पढ़ा है वो सब प्रिंसिपल अप्लाई करके हमको प्रूव करना। Okay, you have the freedom to pause the video and go ahead. The last theorem of the textbook, theorem of midpoints of two sides of triangle. क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल में कैसे आए, ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ने की वजह से, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी पढ़ने की वजह से दोनों को ज्वाइन करके ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, थियरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत काम का है अगले साल। क्या बोल रहे, वेरी सिंपल, क्या है, the segments joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Two properties जो लिखा है, मैं एक डायग्राम बना के बोलूं, this is a triangle। ये मत सोचो ट्रायंगल ऐसा हमेशा ऐसे रहे, these are midpoints। हमको midpoint इसको कनेक्ट करेगा ना, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, क्यों, ये midpoint पे, and this will be parallel to this। Two properties are available। कभी ट्रायंगल का एनी टू साइड्स, मैं दूसरा एक ट्रायंगल बनाता हूँ, कैसे भी ट्रायंगल बनाओ, हर साइड ट्रायंगल, इसको भी होगा ना मिड पॉइंट, कौन सा साइड का लेगा, इसका मिड पॉइंट, वो तो आपकी ये इसका मिड पॉइंट, इसका जॉइंट किया, ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, this will be parallel to this। This is what is the theorem in triangle। अभी प्रूव करना है ये सच है, अब बोलने से नहीं होता ना। तो ट्रायंगल बनाया, पॉइंट P बनाया मिड पॉइंट ऑन AB साइड, Q बनाया मिड पॉइंट ऑन दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, मार्क किया, ठीक है। नाउ वी कनेक्टेड P एंड Q, जैसे क्वेश्चन में बोला, प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is half of BC, ये दोनों प्रूव करना है। हमने अभी पढ़ा हुआ जो पैरेललोग्राम के चैप्टर में ये इसलिए डाला कि पैरेललोग्राम बना के हम ये प्रूव करने जा रहा हूँ। व्हाट वी विल डू, वी विल मेक ए कंस्ट्रक्शन, ये जो बनाया था उसको एक्सटेंड करेंगे सच दैट QR is equal to PQ, ऐसा एक्सटेंशन कर कंस्ट्रक्शन। एंड वी नो दैट AQ is equal to QC, क्योंकि वो गिवन है, Q is मिड पॉइंट, and AQP and CQR are vertically opposite angle, these two angles। तो ये जो ट्रायंगल है ना और ये जो छोटा ट्रायंगल, both are congruent by SAS test। अगर congruent है तो this angle will be equal to this angle, that is PAQ will be congruent to RCQ।
अगर PAQ is congruent to RCQ and PAQ and RCQ are congruent triangle, समझा? At that time we can simply say that AP is congruent to RC also या CR. देखो, तो these two angles are congruent, these two sides are congruent, then we can say that AB is parallel to RC या CR. क्यों? These two are congruent and the angles are formed over here are congruent, and here this is AP and this is CR. AP extend होके BY, तो AB is parallel to CR. हो गया मैं alternate angle test. Once it is happened and AP is always already congruent with CR, हमने लिख के रखा है. So what we can say that, what we can say is, now segment AP this one, segment PB this one, segment CR, all these are congruent. Moreover, PB is congruent to, PB is parallel to CR. ये भी हो गया. अगर PB CR की पैरेलल है, मिटा देता हूं आपको देखने के लिए, तो PB अगर CR का पैरेलल है और ये PB इसका congruent भी है. If you look at this one, what is it? In this whole parallelogram type formation, PBCR. Okay, PBCR is a parallelogram. PBCR is a parallel. जो PBCR parallelogram है, हमारा proof इसी हो गया. क्या है? One thing is PQ is parallel to BC. PQ parallel to BC होगा क्योंकि PBCR is a parallelogram. Then PQ is half of BC. Here PQ is half of PQ. PQ is half of PR. By construction हमने बनाया था, this is the recall. तो half ही है. And BC का equal है PR. PQ अगर PR का half है तो BC का भी half है. PQ is equal to half BC. तो दोनों प्रूव किया. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम. प्रूव करना कुछ डिफिकल्टी नहीं. एक कंस्ट्रक्शन का मामला खुद स्ट्राइक होना है, अभी तो आपको बायहार्ट ही करना है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या आपको मालूम है, SAS टेस्ट क्या है मालूम है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट मालूम है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो यही तो पढ़ रहा था अभी तक की वीडियो में, और ये तो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी कंस्ट्रक्टेड. मतलब फुल स्क्रीन में है क्या, और आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ा पढ़ना अच्छा होगा. एक और छोटा दिख रहा है तो क्योंकि फुल स्क्रीन में बिठाने से थोड़ा साइज कम छोटा हो गया. दोस्त आर सीइंग दिस ऑन ए PC स्क्रीन, नो प्रॉब्लम. मोबाइल स्क्रीन में बहुत तकलीफ हो जाएगा. आई नो योर लिमिटेशन. आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, मैं मैक्सिमम टेक्स्ट बुक का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लुक इनटू द टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन. टेक्स्ट बुक तो आपके साथ घूमने वाला है नेक्स्ट एग्जाम तक, नेक्स्ट क्लास तक और नेक्स्ट ईयर भी. 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स टेक्स्ट बुक घर में रखने का, नेक्स्ट ईयर 10th में बहुत रेफरेंस के लिए काम आएगा. चलो, सो द थिंग इज दैट मिड पॉइंट थ्योरम इसको नाम दिया है. व्हाट इज इट? मिड पॉइंट थ्योरम. वेरी इंपॉर्टेंट. मिड पॉइंट थ्योरम है. ट्रायंगल कौन सा भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, मिड पॉइंट ले लो कोई भी दो साइड का, उसको कनेक्ट कर लीजिए. दिस विल बी हैविंग हाफ साइज ऑफ ABC है, ABC है ऑफ AC का हाफ साइज होगा एंड दिस विल बी पैरेलल टू दिस. हमेशा कैसे भी ट्रायंगल बनाओ वो पैरेलल ही होगा इफ यू टेक कनेक्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ अदर टू साइड्स. Very interesting features are there with triangle, parallelogram, quadrilateral, circles, whatever geometry diagrams the great geometric mathematicians have drawn into conclusion are interesting, and it is very much applicable in our day-to-day life in the construction of many things. Geometry is related with the measurement and construction and accuracy of it, which I told you at the beginning. Moreover, to prove that what we are applying here is our logical thinking, which is very essential in our day-to-day life. My dear students, love the subject for the reason that it helps you to live better. Thank you very much. Now click on the subscription button below
to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.